सो हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता शर्मा, योर एजुकेटर। मैं आप सभी की एजुकेटर हूँ अर्पिता शर्मा एंड करेंटली आई एम टेकिंग कोर्सेज ऑन हिस्ट्री ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस पर आई एम टेकिंग 3 courses: ancient Indian history, medieval Indian history and modern Indian history. So based on that, this is a special class Spectrum PYQ series. PYQs means previous year questions. PYQ का मतलब क्या होता है? Previous year questions. And as you all know that prelims and mains are equally important, right? Agreed? सब agree करते हैं इस बात से? Prelims mains दोनों ही important होते हैं equally. And for prelims you can prepare modern Indian history very well, but for mains to prepare the content, to prepare answer writing, technique, that is very important, right? So in this PYQ series we are going to daily target mains related questions from modern Indian history. हम डेली इसमें मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, ठीक है? सो टुडे आल्सो द क्लास इज इंडिया इन 18th century. This is the topic of today's class, the first chapter of your history, that is India in 18th century. This is the first chapter that you have to study in modern Indian history, because till Aurangzeb's time period it was 17th century. After Aurangzeb died and later Mughals came, we saw the starting of the 18th century, and with the later Mughals we saw the advent of Europeans into India, right? So similar, on the same lines we are going to study the history from the advent of Europeans, from the coming of Europeans. But today we are going to start the condition of India in 18th century. Okay, इंडिया की कंडीशन क्या थी 18th सेंचुरी में, वो पढ़ने वाले हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशन, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है. टुडेज क्लास विल बी इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, दैट इज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. First I'll explain in English only, and then same thing I will translate into Hindi, so that both the students can comfortably study. Okay, now this is a small announcement for all of you. As you can see, UPSC preparation is going to be on the next level with the iconic subscription on Unacademy Plus. Unacademy Plus की ये जो iconic subscription है, इसका price increase होने वाला है. And what is the benefit of taking the iconic subscription? Here you will be allotted your personal coach. For example, if I am allotted as your personal coach, I am going to guide you throughout your journey. अगर मुझे आपका पर्सनल कोच अलॉट किया जाता है तो मैं आपको पूरी जर्नी में गाइड करने वाली हूँ. इफ मृणाल पटेल सर is going to be your personal coach, he is going to guide you throughout the journey. So you will be connected with your personal coach and iconic subscription. Then you can customize your study planner. How? You will be given timetable, ठीक है, schedule, strategy to clear each and every subject. There will be mains test series with evaluation. That means your test paper will be given, mains mock test. You will be told how to answer the questions. Then after answering the questions, your answers will be checked by the evaluators, top educators. Then you can attend study booster sessions, crash courses, right? The courses on tough topics, courses on topics like economics, GDP calculation, etc. तो आपको study booster sessions भी मिलेंगे, यानी कि most important topics के ऊपर extra classes. And you can be a part of high intensity workshops also, where India's highest personalities, top personalities will be there to guide you. Practice answer writing daily. So on daily basis, disciplined schedule will be given to you, and accelerate your preparation with daily current content. That means daily content, daily free material will be given to you with iconic subscription. So prices are going to increase. You can use either code Sharma20 or Arpita10 to get 10% discount. इन दोनों में से कोई भी कोड यूज कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन पर. ओके, क्लियर? दिस मच इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्लास स्टार्ट करें. तो ये छोटी सी अनाउंसमेंट है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, जहां पर आपको दोनों ही कोड में से कोई भी एक कोड यूज करके इजीली 10% डिस्काउंट मिल सकता है. ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. ऑल्सो द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू click on the link and subscribe to iconic subscription. चलो शुरू करते हैं. So these are the two questions that we are going to take from this session. आज के सेशन से ये दो questions हम लेने वाले हैं, and based on these two questions we are going to study today's class. Please write down the question. I am expecting all of you to note down. ठीक है, running notes class में बनाने हैं. You have to make notes in the class itself. Okay. First chapter spectrum series. These are the PYQs that we are going to answer at the end of the session. Question number 1 is,
Social life and culture in 18th century, they were marked by stagnation and dependence on the past. Comment. This question can come for 15 marks. 200 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होगा. So the question for the हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, it says कि जो हमारी 18th सेंचुरी की सामाजिक जो जिंदगी थी, लाइफ थी, जो कल्चर था हमारा, वो स्टैग्नेशन में था, यानी कि वो रुक गया था एक जगह आकर, वो आगे नहीं बढ़ रहा था, और हम अपने पास्ट पे, हिस्ट्री पर, यानी कि मुगल के स्टार्टिंग पीरियड पे डिपेंडेंट हो गए थे. कोई नया टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्निक, कोई नया थॉट प्रोसेस नहीं आया था. ये आपको इस पे कमेंट करना है. Second question is saying, clarify how mid-18th century India was beset with the specter of fragmented polity. This question came in mains 2017. ये क्वेश्चन आपका मेंस 2017 में आया था कि आपको क्लैरिफाई करना है कि जो मध्य काल था 18th सेंचुरी का, ठीक है, वहां पर पॉलिटी जो थी वो बिखर गई थी, फ्रेगमेंटेड थी, टूट गई थी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया अलग अलग भागों में विभाजित हो गया था. ये आपको क्लैरिफाई करना है कैसे हुआ था. ठीक है, क्वेश्चंस आर क्लियर बोथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, लेट मी नो. अगर क्वेश्चंस क्लियर है आप लोगों को तो फटाफट से बताओ. दोनों क्वेश्चंस क्लियर है? नाउ कैन वी स्टार्ट स्टडिंग? ओके, शुरू कर सकते हैं. एवरीबडी इज रेडी, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट वाज इंडिया लाइक इन द 18th सेंचुरी. भारत का रूप कैसा था, नक्शा कैसा था 18th सेंचुरी में, हम वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले. देन वी विल आंसर दीज टू क्वेश्चंस. आई होप यू हैव नोटेड देम डाउन. एवरीबडी कैन सी दिस मैप. सभी बच्चे ये मैप देख पा रहे हैं ना? ठीक है, दिस इज दी you can say form of India, or you can say picture of India in the 18th century. 18th century में ये पिक्चर थी भारत की. दिस वॉज दी पिक्चर. ठीक है, नाउ इन 18th century we were having the मुगल क्राइसिस. 18th century में क्या हो रहा था? मुगल क्राइसिस हो रहा था हमारा. मुगल क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब कि भाई बहुत बड़ी टेंशन खड़ी हो गई थी. अ वेरी बिग टेंशन वाज स्टैंडिंग ऑन आवर हेड. Mughal crisis was there. That means the Mughal Empire was falling down. 18th century period, it shows the Mughal crisis. Over here you can see how Mughal crisis was taking place. The entire Mughal Empire was getting fragmented. It was getting divided into various independent kingdoms. ठीक है, मुगल एम्पायर जो था छोटे 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 किंगडम में बट रहा था. It was getting divided into smaller kingdoms. For example, we saw Awadh, we saw Murshidabad in Bengal. हमने बंगाल देखा, हमने जोधपुर देखा, हमने भोपाल देखा, हैदराबाद. All these you can see that they were getting divided. ठीक है, ये सारे जो हमारे एम्पायर था ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो रहा था. अवध, बंगाल, हैदराबाद, ठीक है, all these empires were getting created. Now the reason why these fragmentation was taking place, why Mughal Empire was suffering so much, because the later Mughals were weak. जो आपके later Mughals थे ना वो काफी weak थे. ठीक है, administratively they were very weak. For example, if we can name few, अगर हम नेम की बात करें, ठीक है, तो it was जहांदार शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला. Okay, then we have बहादुर शाह, ठीक है, फारूक सियार, अकबर टू. ठीक है, so all these after Aurangzeb, whatever Mughals came, all of them they were going down. Yes, आलमगीर टू. तो जितने भी मुगल्स औरंगजेब के बाद थे ना वो सब वीक थे एडमिनिस्ट्रेटिवली. दे डिड नॉट हैव द माइंड टू रन दी एम्पायर. उनके पास इतना दिमाग नहीं था या उतनी स्ट्रैटेजी नहीं थी कि वो एम्पायर को रन कर सके, चला सके. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ पर? सो दैट इज वाई द लेटर मुगल्स वर नोन एज द वीक मुगल्स एंड दे वर बिकमिंग द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ देयर ओन मिनिस्टर्स. अपने ही खुद के मिनिस्टर्स के हाथ में पपेट बन रहे थे. देयर ओन वजीर्स, देयर ओन नोबल्स, मिनिस्टर्स. व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू? दे वर ट्राइंग टू गिव देम ऑर्डर्स, रन द एम्पायर ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल एम्परर्स. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्लियर हो रही है बात? फॉर एग्जाम्पल, जहांदार शाह वॉज द पपेट इन द हैंड्स ऑफ जुल्फिकर खान. जुल्फिकर खान के हाथों की कठपुतली बन गए थे जहांदार शाह. So that is why it is said that the nobles, the ministers sitting in the court of the Mughal emperors, they were creating their own small empires, their own small kingdoms. For example, हैदराबाद को देख लो अगर आप, ठीक है, निजाम उल मुल्क वो कौन थे? निजाम उल मुल्क was the minister in the court of the Mughal emperors.
ठीक है, एंड ही ऑल्सो वॉज डिससेटिस्फाइड विद द मुगल रूलर एंड दैट इज वाई ही बैक्ड आउट, ही केम आउट ऑफ द मुगल एम्पायर एंड क्रिएटेड हिज ओन एम्पायर। ठीक है, और जब हम बात करते हैं ना इंडिपेंडेंट किंगडम्स की, वहीं फ्यूडलिज्म भी आ जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ इट, इट इज नॉट सेपरेट। सो फ्यूडलिज्म इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेगमेंटेशन, इस फ्रेगमेंटेशन का पार्ट फ्यूडलिज्म भी है, सामंतवाद भी है, it is also a part of this fragmentation. Feudalism means when you are gaining your own land and you are becoming the owner of your own land, you are becoming the owner of your own territory, that is feudalism. सामंतवाद बढ़ने लगा, and we all know when feudalism rises what happens, the central power comes down। ठीक है, इसको प्लीज लिख लीजिए। ठीक है, फ्यूडलिज्म का जब इंक्रीज होता है तो सेंट्रल पावर नीचे जाती है, बिकॉज द फ्यूडल लॉर्ड्स दे गेन पावर बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, देयर लैंड। फ्यूडल लॉर्ड्स ज्यादा होने लगते हैं ना किसी स्टेट में, तो वहां पर उन लोगों की ज्यादा चलने लगती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो फ्यूडलिज्म इंक्रीजेस, सेंट्रल पावर गोज डाउन। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर एट दैट टाइम, ये था स्ट्रक्चर उस टाइम पर। ठीक है, इंडिया का, वी आर स्टडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। Okay, so this was the structure of India. So feudalism was increasing, central power was coming down, fragmentation was happening, independent kingdoms were getting created, so culture was also getting divided, yes or no, agreed or not, culture was also getting divided, later Mughals were also becoming weak। ठीक है, later Mughals they were becoming weak, so this was the condition। अब ये तो condition थी उस टाइम पर। So you can write over here, आप यहाँ पर शुरू कर सकते हो लिखना, that during the first half of, so the notes that we are making in the class, they are going to help you in your revision। ठीक है, these are summary of NCERT and spectrum, so please write it down, इसको please लिख लीजिएगा। ठीक है, simultaneously you can make notes with me in the class। So during the first half of the 18th century, ठीक है, 18th century के first half में, write it down, the boundaries of the Mughal Empire, the boundaries of the Mughal Empire were reshaped by the emergence of a number of independent kingdoms। तो ये हो जाएगा आपका starting of 18th century, that 18th century first half saw the boundaries of Mughal Empire getting reshaped। Our boundaries, as you can see in the map also, they were getting reshaped। मैप में भी देख सकते हो हमारी जो बाउंड्रीज थी भारत की, मुगल एम्पायर की, वो फिर से रीशेप हो रही थी, नया शेप धारण कर रही थी। Why? Because of coming up of number of independent kingdoms। You can give the example also, you can give the example of Hyderabad over here, you can give the example of Awadh over here, you can give the example of Bengal over here। ठीक है, आप बंगाल का एग्जाम्पल दे सकते हो, you can give the example of Carnatic region over here। पूरा कर्नाटिक रीजन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, एंटायर कर्नाटिक रीजन, आर्कोट रीजन वाज गेटिंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? एंड ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड, राइट इट डाउन, ऑल ऑफ दिस इट स्टार्टेड with the death of Aurangzeb। Now Aurangzeb died in which year? Let me know in the comment section। औरंगजेब कौन से ईयर में डेथ होती है इसकी? वेरी गुड, 1707। दैट मीन्स 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब औरंगजेब गिरता है, धीरे धीरे एम्पायर भी गिरने लगता है। एज औरंगजेब डाइज, द एम्पायर ऑल्सो डाइज अ स्लो डेथ। एम्पायर की भी धीरे धीरे ग्रेजुअली मृत्यु होने लगती है। ठीक है, सो फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब्स डेथ टिल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, we see the empire getting deteriorated। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक 1761 एम्पायर जो है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। ठीक है, the introduction is clear। ठीक है, now coming on to the next important point। next important point पे आते हैं। now when we talk about the emperor औरंगजेब, जब हम बात करते हैं एम्परर औरंगजेब की, ठीक है,
Now what he did, he is also responsible for the decline of Mughal empire. Don't think that Aurangzeb was very good. ये मत समझना कि औरंगजेब काफी अच्छा था, इसके टाइम पीरियड में everything was going on well. No, Aurangzeb is also responsible for the decline of Mughal empire, because what he did, he, you can say, depleted all the financial resources. So you can write he had depleted all the military and financial resources. सारी military and financial resources इन्होंने तबाह कर दी थी, खत्म कर दी थी of the empire. Why? By fighting a long war in the Deccan region. ठीक है, अब he wanted to conquer the south region, he wanted to enter into the Deccan region and establish his empire. ठीक है, so Emperor Aurangzeb had depleted all the military and financial resources of the empire by fighting a long war in the Deccan region, and that too was unsuccessful. इसमें भी वो unsuccessful थे. ठीक है, इसीलिए माना जाता है कि औरंगजेब के ये अनसक्सेसफुल वॉर्स के कारण इनकी सारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिप्लीट होने लगे. सो नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द लेटर जनरेशन. दैट इज व्हाई द लेटर मुगल्स वर वीक. ठीक है, तो इन्होंने लेटर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रीजन. नाउ अनदर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन मेंस. ठीक है, ए सतीश, डेक्कन रीजन मींस द सर्दर्न रीजन. Okay, so another question can be asked in mains, that can be state the reason for the decline of Mughal empire. This can be the first reason in that case. एक और question हम note down कर लेते हैं यहाँ पर. Let's note down one more question over here. Please write it down. State the reasons for the decline of the Mughal empire. These three questions can be asked from today's topic in your mains. ये 3 questions आ सकते हैं आपके आज के टॉपिक से मेंस के अंदर, और क्वेश्चन आ सकता है आपका 15 नंबर का. ठीक है, आराम से 15 या 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर? सारे क्वेश्चन सभी ने नोट डाउन कर लिए हैं. ओके, सो फर्स्ट रीजन. नाउ सेकंड रीजन. व्हाट इज द सेकंड रीजन? लेट अस सी दैट. Second reason is that the nobles means ministers. Who are the nobles? Nobles are the ministers. So the nobles who were appointed as governors, जिनको हमने governors के तौर पे अपॉइंट किया था. Now the governors in the Mughal empire were known as subadars. ठीक है, the governors in the Mughal empire, they were known as subadars. So the nobles who were appointed as governors, they controlled, write it down, they controlled the offices of revenue and military administration in the later Mughal period. तो later Mughal period में revenue और military administration कौन संभाल रहा था? It was the subedars, it was the governors, the ministers, and these offices were known as दीवानी. इन offices को हम क्या कहते थे? दीवानी बोलते थे. दीवानी and फौजदारी. So revenue office was known as दीवानी and military office was known as फौजदारी in the Mughal period. This is important for prelims also. Please note it down. इसको note down कर लीजिएगा. ठीक है, which gave them extraordinary political power, extraordinary political, economic and military powers over the king. पॉइंट क्लियर हो रहा है यहां तक सभी को? ओवर द किंग्स, ओवर द वास्ट एरिया ऑफ द मुगल एम्पायर. ठीक है, पॉइंट क्लियर? सो दिस इज द सेकंड रीजन. ये हो गया आपका सेकंड रीजन कि नोबल्स दे वर गेनिंग पावर. जो मिनिस्टर्स थे उनको पावर ज्यादा मिल रही थी. एंड इट इज सेड व्हेन मिनिस्टर्स दे गेट लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ कंट्रोल, देन दे कैन ऑल्सो रिमूव द किंग from the position. जब ministers को आप हद से ज्यादा, when you give powers unlimited to the ministers, then they can stand against even the king. वो राजा के सामने भी खड़े हो जाते हैं. So this was the second reason why Mughal empire declined. क्यों मुगल एम्पायर नीचे गिरा? ये second reason है. अब इसके अंदर the points that I have made you write, फौजदारी, दीवानी, these points are important for prelims. ठीक है, they can ask you what was the revenue ministry known as in the Mughal empire. It was known as दीवानी. Military administration was known as फौजदारी. ठीक है, nobles were also known as सूबेदार्स. nobles को, governors को सूबेदार्स कहा करते थे. ये points याद रखिएगा. ठीक है, so let's
मूव ऑन टू दी थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट बाबा का ढाबा, दिल्ली केस ऑफ बाबा का ढाबा, सभी ने सुना है बाबा का ढाबा दिल्ली में, ठीक है, इन द मालवीय नगर। सो हैव यू सीन नाउ ही हैज लॉन्च्ड हिज ओन रेस्टोरेंट, उन्होंने खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया है। So you can see from a small dilapidated place he is now moving to a restaurant. So this is because of the power that comes with money. ठीक है, here nobles were also getting such powers, that is why they were also acting like kings. ये भी राजा बन गए थे। तो जब आपके पास पावर अटैच हो जाती है ना, when power is attached to you, your position changes. Similarly, when power was attached from the king to the nobles, his position changed. ठीक है, गवर्नर की पोजीशन भी चेंज हो गई जब पावर आ गई। तो पावर चेंजेस एवरीथिंग, पावर चेंजेस द पोजीशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। द थर्ड पोजीशन, द थर्ड रीजन, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड रीजन, इट इज, राइट इट डाउन, इसको लिख लीजिए, दैट द पेजेंट एंड जमींदारी सिस्टम, द पेजेंट एंड द जमींदारी सिस्टम, और यू कैन से द, आप इसकी जगह सिस्टम की जगह रेबेलियंस भी लिख सकते हो, यू कैन राइट ओवर हियर रेबेलियंस ऑल्सो, द जमींदारी एंड पेजेंट रेबेलियंस इन मेनी पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल बंगाल, ठीक है, इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया added to these problems, ठीक है। The decline of the Mughal Empire, the problems were added by these rebellions also, ठीक है। ये जो विद्रोह हो रहा था, rebellion means विद्रोह, ठीक है, rebellions means when you are protesting against something, so that is rebellion। तो peasants were rebelling, जमींदार्स were rebelling, ठीक है। तो peasants और जमींदार्स ना प्रोटेस्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, why? Because of the increased power of the governor, ठीक है। क्यों ये विद्रोह कर रहे थे? बिकॉज द नोबल्स वर हैविंग इंक्रीज पावर। फॉर एग्जाम्पल इन बंगाल, मुर्शीद कुली खान, अगेंस्ट हिम द पेजेंट, द जमींदार्स वर रिबेलिंग, ठीक है, बिकॉज ही हैज लॉन्च्ड तकवी। तो मुर्शीद, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, कि बंगाल में देयर वॉज अ गवर्नर और नोबल कॉल्ड मुर्शीद कुली खान, ठीक है, मुर्शीद कुली खान। एंड व्हाट ही डिड, ही इंट्रोड्यूस्ड द तकवी सिस्टम। इन्होंने क्या किया? तकवी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। व्हाट वाज तकवी? दीज वर लोन्स गिवन टू एग्रीकल्चरल, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस टू द पेजेंट्स, ठीक है, गिवन टू पेजेंट्स, द एग्रीकल्चरल लोन्स which were given to the peasants, the farmers. So that is why the farmers, they could easily get loan from the government. So they never went to the zamindars. zamindars की तो आमदनी ही लोन देने से बनती थी, क्योंकि लोन देते थे और फिर peasants को भड़काते थे, उनको भटकाते थे, उनके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके उनसे ज्यादा पैसा वापस ऐंठते थे या उनकी जमीन ले लेते थे, ठीक है। तो इसलिए जमींदार के तो पेट पे लात मार दी इन्होंने तकवी लोन निकालकर। द जमींदार सिस्टम, व्हाट वाज इट, दैट द जमींदार यूज्ड टू गिव द लोन टू द पेजेंट्स एंड देन ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ दैट लोन they would cheat the peasant, they would forge the documents and they would extract more money from them or even snatch away their lands. So when takvi loans were introduced, now peasant need not go to the zamindar, they used to go to the government directly to take loans, agricultural loans at minimal rate of interest. So that is why the zamindars were very unhappy with this takvi loan and they protested against Murshid Quli Khan. इन्होंने क्या किया? मुर्शीद कुली खान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया। So these were the three reasons, the three major causes why Mughal Empire, ठीक है, it was going down. Now students are asking, ma'am, zamindar peasant we understand, why peasants were doing the protest? zamindar protest कर रहे हैं, समझ आता है, peasant क्यों कर रहे हैं? Obviously in Hyderabad you will see that high rate of interest were being charged by the state government, by the emperor on the peasants, on their land revenue. That is why they were protesting. Okay, दोनों केस में क्या था? जमींदार के केस में उनसे तकवी लोन पास करके उनको लोन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटा रहे हैं, पेजेंट से ज्यादा लोन ले रहे हैं कहीं पर। तो देयर वर डिफरेंट पॉलिसीज बीइंग अडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज डिफरेंट इंडिपेंडेंट किंगडम वाज देयर। दिस इज सो इजी टू अंडरस्टैंड, यस और नो। यहाँ पर कॉमन सेंस से यूज करके इसको समझा जा सकता है कि भाई अलग अलग जगह अलग अलग किंगडम्स थे, तो लोग जो एम्परर्स थे वो अलग अलग दिमाग के थे, अलग अलग थॉट प्रोसेस के थे, तो अलग पॉलिसीज थी। देयर वाज नो सिंगल पॉलिसी, देयर वाज डिफरेंट पॉलिसी, ठीक है।
क्लियर हो गई? बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉलिसी डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट इश्यूज, अलग अलग पॉलिसीज की वजह से अलग अलग लोगों को अलग अलग दिक्कतें थी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यहां पर निकल कर आता है इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि नए स्टेट्स अब उभर कर आने लगे। ठीक है, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट्स वर कमिंग अप, नए नए स्टेट्स निकल कर आ रहे थे। ठीक है, सो नाउ इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स शुरू करते हैं। नाउ जब हम बात करते हैं न्यू स्टेट्स की, तो कौन कौन से स्टेट्स निकल कर आए? व्हाट वर दी स्टेट्स दैट वर कमिंग अप? सो फार हमने कौन कौन से स्टेट्स के बारे में पढ़ा है, लेट अस सी। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा है हैदराबाद के बारे में। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हैदराबाद। सेकेंड न्यू स्टेट दैट वाज फॉर्म्ड इज अवध। नेक्स्ट आ जाता है आपका अवध। थर्ड न्यू स्टेट इज बंगाल, थर्ड आ जाता है आपका बंगाल। देन वी हैव द स्टेट्स अंडर राजपूत, द राजपूतानाज। ठीक है, द वतन जागीर जिनको हम बोलते हैं, राइट इट डाउन, वी विल स्टडी दिस ऑल्सो, द वतन जागीर ऑफ द राजपूत। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाता है जोधपुर, वी हैव जोधपुर ऑल्सो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हो जाते हैं आपके स्मॉल सिख एम्पायर, पंजाब आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहां तक सभी को? ठीक है, द सिक्स, देन वी हैव द मराठास, फिर हमारे पास कौन आते हैं? मराठास आते हैं, द स्मॉल किंगडम्स हेल्ड बाय मराठास, यस, पूना आ जाएगा इसके अंदर एग्जाम्पल। ठीक है, देन वी हैव द जाट्स, आई टोल्ड यू फ्यूडलिज्म वाज इंक्रीजिंग, सामंतवाद बढ़ रहा था, लैंड ओनरशिप वाज इंक्रीजिंग, सो फ्यूडल लॉर्ड्स आ रहे थे, जाट्स आ रहे थे, जाट्स आर आल्सो नोन एज द फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहां तक सभी को? जैसे कि पानीपत, जैसे कि बल्लभगढ़। ठीक है, द बल्लभगढ़ रीजन दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द जाट्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। These are the different empires, different new states that came up during the time of 18th century when later Mughals were going down. जैसे ही later Mughals नीचे जा रहे थे, ये अलग अलग states उभर कर आ रहे थे। यहाँ तक आप सभी ने फ्लो चार्ट बना लिया हो तो जल्दी से बताएं। If you have created the flow charts, then let me know. Okay, flow chart created. Okay, very good, very good. So everybody is making notes, यानी कि सब जगे हुए हैं क्लास में। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करते हैं, हु वर द रूलर्स ऑफ दीज न्यू स्टेट्स? ये so who were the rulers of all these states? These were emperors, the ministers of the emperors only. ठीक है, नोबल्स, ये सारे जो नोबल्स थे यही तो थे, इन्हीं का तो दिमाग था कि मुगल एम्पायर से अलग हो जाए। इट वॉज देयर माइंड गेम that we need to step away from the Mughal empire because the later Mughals are weak, they are not going to listen to anybody, बहुत कमजोर है, नहीं सुनने वाले किसी की। So you can say that though the 18th century the Mughal empire gradually got fragmented. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो कि during the, not after the, during the 18th century, ठीक है, the Mughal empire, the whole of Mughal empire got fragmented. फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेगमेंटेड? विभाजन हो जाना, ठीक है, डिवाइड हो जाना, बट जाना। तो इट गॉट फ्रेगमेंटेड इनटू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पर सभी को? और यू कैन से रीजनल स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल बंगाल, तो रीजनल स्टेट्स। ठीक है, and you can say it can be divided into 3 overlapping groups. अब हम इन सभी states को ना 3 ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। The flowchart that we are going to create now is important for prelims. All these states were divided into 3 groups. So what were these 3 groups? ये 3 ग्रुप्स क्या थे? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, just note it down, this is very important. The 3 groups of independent kingdoms or independent empires that were created, those were, वो कौन कौन से 3 स्टेट्स थे ये समझ लेते हैं। फर्स्ट वी हैव, पहला हमारा हो जाता है स्टेट्स लाइक स्टेट्स दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। ठीक है, ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, सबने लिख लिया ये? दिस इज ओल्ड, एम मीन्स मुगल, प्रोविंसेस, ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। एग्जाम्पल विल बी अवध, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा अवध। देन बंगाल, देन यू हैव योर बंगाल, then you have Hyderabad. These are the 3 examples.
अवध, बंगाल, हैदराबाद, दीज वर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में आ जाता है स्टेट्स दैट इंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस, यानी कि जो मुगल एम्पायर के अधीन नहीं थी, द स्टेट्स विच वर नॉट डोमिनेटेड बाय मुगल एम्पायर, दे एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स, यानी कि मुगल्स के अंडर ये स्टेट बने थे बट उनके अधीन नहीं थे। दे वर अंडर द मुगल्स बट नॉट डोमिनेटेड बाय द मुगल्स, दे वर गिवन फ्रीडम, सो अंडर द मुगल्स एज वतन जागीर्स। ठीक है, यानी कि लैंड ओनर्स, वतन जागीर्स। तो ये स्टेट्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? राजपूतानास। Here the example will be राजपूतानास। पॉइंट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। यहां तक पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट फॉर्म ऑफ स्टेट्स, आपकी थर्ड कैटेगरी क्या होगी? द स्टेट्स विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास। ठीक है, इसको हटाओ। दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठास, सिख्स एंड जाट्स। ठीक है, वो स्टेट्स जो कि मराठा, सिख और जाट के कंट्रोल में थे। तो व्हाट वर दी एग्जांपल्स ऑफ दीज स्टेट्स? इनके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? पंजाब हो जाएगा इनका एग्जांपल कैन बी पंजाब। ठीक है, एग्जांपल कैन बी बल्लभगढ़। ठीक है, राइट डाउन दी एग्जांपल, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल कैन बी पानीपत। ठीक है, सो दीज कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ सच स्टेट्स। यहां तक सभी को पॉइंट क्लियर हो गया? प्लीज लेट मी नो इफ द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, स्टेट्स दैट एंजॉयड इंडिपेंडेंस by staying under the मुगल्स, that means the वतन जागीर्स, and states under the control of मराठा, सिख्स and जाट्स। ये आपके 3 ग्रुप्स हो गए स्टेट्स के। ठीक है, यहां तक डाउट क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब शुरू करते हैं हैदराबाद से। लेट्स स्टार्ट विद हैदराबाद, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स साइमल्टेनियसली इन द क्लास, इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन रिवाइजिंग। ठीक है, अब जब हम हैदराबाद की बात करते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद? हैदराबाद के फाउंडर कौन है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, निजाम उल मुल्क। हैदराबाद के फाउंडर हो जाते हैं आपके निजाम उल मुल्क असफ जा। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द फाउंडर वॉज निजाम उल मुल्क असफ जा एंड ही फाउंडेड हैदराबाद। नाउ he was the minister under which मुगल रूलर? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ये किस मुगल रूलर के अंडर मिनिस्टर थे? तो he was appointed by, write it down, he was appointed by the Mughal emperor फारूक सियार। ठीक है, तो फारूक सियार जो थे उन्होंने इनको एज गवर्नर अपॉइंट किया था, बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद द वे फारूक सियार वॉज रूलिंग। फारूक सियार जिस तरीके से सैयद ब्रदर्स के गुलाम बनकर बैठे थे, इनको पसंद नहीं आया। फारूक सियार वॉज दी पपेट रूलर ऑफ सैयद ब्रदर्स, so that is why he was not happy with फारूक सियार। निजाम उल मुल्क was a scholarly person, बहुत ही एजुकेटेड थे, स्कॉलरली थे। ठीक है, but he did not like the dependence of the king on Sayyid brothers. He did not like the you can say failure of administration under Farooq Siyar's rule. That is why he said, I don't want to, I cannot continue under you. मैं आपके अंडर काम नहीं कर सकता, ऐसे मुझसे काम नहीं होगा। दैट फॉर एवरी लिटिल थिंग यू आर रनिंग टू सैयद ब्रदर्स फॉर हेल्प, आई कांट वर्क लाइक दैट, सो आई एम गोइंग आउट, मैं निकल रहा हूँ। ही लेफ्ट द मुगल एम्पायर एंड ही क्रिएटेड हिज ओन इंडिपेंडेंट स्टेट दैट इज नोन एज हैदराबाद, बट ही क्रिएटेड दैट स्टेट अंडर द मुगल प्रोविंस ओनली। ठीक है, नाउ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फारूक सियार ने इनको दी थी वो पढ़ लेते हैं। व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन बाय फारूक सियार टू निजाम उल मुल्क? लेट अस स्टडी दैट। सो ही वाज इंटरेस्टेड, राइट इट डाउन, ही वाज इंटरेस्टेड फर्स्ट with the governorship. When he was the governor in the court of Farooq Siyar, he was given the responsibility of being the governor of Awadh. इनको सबसे पहले अवध का गवर्नर बनाया गया था। एंड लेटर he was given the charge of Deccan region.
That is why smoothly he could establish his kingdom in Hyderabad. इसलिए बहुत आराम से इन्होंने हैदराबाद में अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लिया, बिकॉज ही ऑलरेडी वॉज अ गवर्नर ऑफ हैदराबाद अंडर फारूक सियार. ठीक है, सो पीपल दे ट्रस्टेड निजाम उल मुल्क. जो लोग थे ना हैदराबाद के, वो ट्रस्ट करते थे निजाम उल मुल्क पर, because he was the governor of that place. So people all, easily they were ready to become a part of independent kingdom of Hyderabad. Point clear? तो ये तो हो गया first point. Now he ruled quite independently even under Farooq Siyar. Write it down. He ruled quite independently even under Farooq Siyar. FS means Farooq Siyar. ठीक है, तो इसलिए दैट इज वाई इट वॉज इजी फॉर हिम टू गो आउट ऑफ द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर. ठीक है, फारूक सियार की कोर्ट से बाहर निकलना इनके लिए इजी था, क्योंकि जब ये फारूक सियार के अंडर भी थे ना, फारूक सियार को एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब नहीं, तो ये इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे. ठीक है, फारूक सियार हैड नो लेना देना विद द एडमिनिस्ट्रेशन, ही हैज नथिंग टू डू विद द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, he was totally dependent on the ministers only. So under Farooq Siyar also he was ruling very nicely, very freely. So that is why it was easy for him to step out of Farooq Siyar's court and to establish his own kingdom. ठीक है, so you can say the state of Hyderabad, you can now write the state of Hyderabad, it was constantly engaged in a struggle against the Marathas, because Marathas were the decade-long enemies of Mughals. ठीक है, since the time period of you can say औरंगजेब, मराठास और मुगल्स की बिल्कुल नहीं बनी. Since the time period of औरंगजेब the relationship was crude. ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हो गया था. सो हैदराबाद वॉज कॉन्स्टेंटली engaged in the tussle, in the fight between Mughals and Marathas to the west. Marathas कहाँ से आ रहे थे? वेस्ट से आ रहे थे. ठीक है, एंड फ्रॉम द साइड ऑफ तेलुगु के साइड से जो आपके तेलुगु वॉरियर चीफ्स हुआ करते थे, वो भी अटैक करते थे हैदराबाद के ऊपर. तो हैदराबाद इवन आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट इट वॉज फेसिंग स्ट्रॉन्ग फाइट्स विद मराठास. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? तो जल्दी से बताएं. हैदराबाद की हिस्ट्री समझ आ गई सभी को? अब बढ़ते हैं अवध की तरफ. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवध. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अवध, who was appointed as the सूबेदार of अवध under the मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर के अंडर सूबेदार कौन थे? इट वॉज बुरहान उल मुल्क. वेरी गुड प्रिया. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अवध में बुरहान उल मुल्क आ जाते हैं. ठीक है, he is appointed, his full name is बुरहान उल मुल्क सादत खान. ठीक है, इनका जो पूरा नाम है वो है बुरहान उल मुल्क सादत खान. He was appointed as the governor and governor was known as, गवर्नर को क्या कहा जाता था? He was known as सूबेदार in मुगल एम्पायर. ठीक है, so he was appointed as सूबेदार in the year 1722. This is important for prelims. Year important है prelims के लिए. How can you remember the years? By revising it daily. हर दिन रिवाइज करोगे तो याद हो ही जाएगा, पर एक दिन पढ़ के छोड़ दोगे तो कभी याद नहीं होगा. If you just read and leave it, you will not be able to retain it. So revise daily. So Awadh, Burhan ul Mulk Sadat Khan, Governor Subedar, he was appointed in 1722 and Awadh was a very prosperous region. ये बात याद रखना, even during the time of Britishers also knew that Awadh is a very prosperous region. That is why they annexed Awadh. इसलिए उन्होंने अवध को छीन लिया था. ठीक है, and why it was prosperous? Because it was near the rich alluvial गंगा प्लेन. कहाँ पर है ये अवध? ये गंगा प्लेन्स के आसपास है. तो दैट मीन्स इट्स लैंड इज वेरी फर्टाइल. इसकी जो जमीन है वो बहुत फर्टाइल है. सो दैट इज वाई द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वर फ्लरिशिंग इन अवध. एंड व्हेन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज फ्लरिश वी हैव गुड इकोनॉमी. जहां एग्रीकल्चरल एक्टिविटी धूमधाम से ऊपर बढ़ती है, फ्लरिश करती है, प्रॉस्पर करती है, ठीक है, हम क्या करते हैं? हम उस वहां पर इकोनॉमी को अच्छा मानते हैं. सो अवध, इट वॉज अ प्रॉस्पेरस रीजन, रिच एलुवियल गंगा प्लेन्स के आसपास था एंड लैंड वॉज वेरी फर्टाइल. ठीक है, एंड ऑल्सो इट हैड द मेन ट्रेडिंग रूट बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल. नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच का रूट यहीं से होकर गुजरता था. सो ट्रेड एंड कॉमर्स वाइज ऑल्सो इट वॉज फ्लरिशिंग
ट्रेड कॉमर्स वाइज भी ये फ्लरिश कर रहा था. पॉइंट क्लियर. नाउ बुरहान उल मुल्क he held the combined officers of सूबेदारी, ठीक है, दीवानी and फौजदारी. So what was दीवानी and फौजदारी? In the starting of the class we discussed. दीवानी और फौजदारी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दो. What is दीवानी and फौजदारी? Yes, दीवानी means revenue department. फौजदारी means military department. ठीक है. So he was holding the offices of सूबेदारी also, that means he was the governor also. गवर्नर क्या संभालता है, लॉ एंड ऑर्डर संभालता है. ठीक है. सिक्योरिटी यानी कि फौजदारी. दीवानी मीन्स रेवेन्यू. सो ऑल दीज ऑफिसर्स वर बीइंग हैंडल्ड बाय दिस बुरहान उल मुल्क सादत खान. ये सारे ऑफिसेस हैंडल कर रहा था. सो ही हैड मोर पावर ओवर अवध. इसलिए इसकी पावर जो थी अवध पर ज्यादा थी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी. एंड पीपल वर ऑल्सो ट्रस्टिंग बुरहान उल मुल्क एंड दे वर कंसिडरिंग हिम एज देयर रूलर. तो मुगल एम्पायर में जब मिनिस्टर्स को ज्यादा पावर मिलने लगी तो लोगों को लगा मिनिस्टर्स ही राजा हैं. When the ministers having the charge of small empires, small kingdoms, small states, they had more powers. People used to think, the citizens used to think that this minister or this governor is only our ruler. ठीक है. So that is why the people of Awadh also used to treat him like the king. ठीक है. क्लियर हो रही है बात. तो इसीलिए अवध के जो मिनिस्टर्स थे ना, वो लोग थे, वो इनको अपना राजा समझते थे. अमित, दीवानी, फौजदारी, सूबेदार ये इंग्लिश वर्ड थोड़ी होते हैं, ये हिंदी वर्ड ही तो है. तो इसको अलग से कैसे समझाऊं आपको. दीवानी मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो वित्तीय डिपार्टमेंट संभालेगा. फौजदारी मतलब मिलिट्री तो आपको पता ही होना चाहिए. सूबेदार मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर संभालेगा, जो गवर्नर है. ठीक है. क्लियर हो रही है बात. इतना समझ आ गया. दैट इज वाई, बिकॉज ही हैड द होल्ड ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, क्योंकि इनके पास सारे डिपार्टमेंट का कंट्रोल था. इसीलिए दैट इज वाई ही बिकेम मोर पावरफुल. एंड हिज इंक्रीज इन पावर, ठीक है, इनका जो इंक्रीज था पावर का, इट लेड टू डिक्रीज ऑफ मुगल इन्फ्लुएंस. राइट इट डाउन. बिकॉज ऑफ हिज पावर्स इट लेड टू डिक्रीज इन मुगल इन्फ्लुएंस. ठीक है. पॉइंट क्लियर. सो दिस मच इज क्लियर. अवध की बात सबको समझ आ गई यहां तक. ठीक है. अब अवध में क्यों इंडिपेंडेंट स्टेट बना, इतना समझ आ गया सभी को. ठीक है. कमिंग ऑन टू बंगाल. अब बात करते हैं बंगाल की. We have understood why Awadh was created as an independent kingdom. में हमने ये समझ लिया कि अवध एक अलग से independent kingdom क्यों बना, because Mughal influence was decreasing because of increasing power of the governor. ठीक है. Now Bengal तो बहुत धीरे धीरे, पता ही नहीं चला कब टूट गया. ठीक है. Mughal emperor could not know when Bengal it slipped from its clutches. ठीक है. So over here you can see, सो बंगाल इधर आप देख सकते हो, इट ग्रेजुअली ब्रोक अवे. ठीक है. धीरे धीरे बंगाल टूटने लगा. ग्रेजुअली इट ब्रोक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल. मुगल कंट्रोल से धीरे धीरे ये छूटने लगा, टूटने लगा. ठीक है. एंड इट वॉज अंडर हुज कंट्रोल, किसके कंट्रोल में ये था. कंट्रोल यहाँ पर रियल कंट्रोल वॉज बाय मुर्शीद कुली खान. ये हमने अभी 2 स्लाइड पहले डिस्कस किया था. ठीक है. वी जस्ट डिस्कस दिस in the last 2 slides. Murshid Quli Khan, he was the Subedar of Bengal. Now let me know in the comment section, who is a Subedar? What power does a Subedar has? Subedar के पास कौन सी पावर होती है, अभी जस्ट डिस्कस किया हमने. Yes, very good. Subedar means governor, जो कि law and order देखता है, which looks after the law and order. So Subedar is a person who looks after the complete law and order. ठीक है. जैसे गवर्नर होते हैं ना स्टेट में, बिल्कुल वैसा. सो ही वॉज मुर्शीद कुली खान. ठीक है. एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज नायब. अब बंगाल में ना टर्म्स बदल जाते हैं. इन बंगाल द मीनिंग ऑफ द टर्म्स दे चेंज. ठीक है. तो नायब का मतलब क्या होगा. नायब मीन्स ही वॉज डेप्यूटी टू द गवर्नर. तो ही वॉज डेप्यूटी गवर्नर. ठीक है. ये कौन हो जाएंगे, डेप्यूटी गवर्नर. जस्ट लाइक यू सी डेप्यूटी सीएम. ठीक है. वैसे ये हो गए डेप्यूटी गवर्नर. ठीक है. तो ये थे नायब. ठीक है. एंड ही वॉज द नायब एंड ही वॉज यू कैन से नॉट अ फॉर्मल सूबेदार. ये एक फॉर्मल ऑफिशियल सूबेदार नहीं थे, डेप्यूटी सूबेदार थे. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गई सभी को ये बात. बट पावर्स इनके पास गवर्नर जैसी ही थी.
The powers that he had was like a governor only, but not officially he was governor. That means मुगल एम्पायर ने इनको ऑफिशियली प्रमाण पत्र नहीं दिया था कि अब आप गवर्नर हो. No letter of recognition that you are a formal governor was given by the Mughal emperor to Murshid Quli Khan. So वो self appointed governor बन गए. ठीक है, क्या बन गए? सेल्फ अपॉइंटेड. पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर सभी को? तो इन्होंने क्या किया, प्रजा के सपोर्ट से, विद द सपोर्ट ऑफ द सिटीजंस, ही मेड हिमसेल्फ द गवर्नर. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक. एंड लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद, लाइक द रूलर्स ऑफ अवध, ही ऑल्सो, राइट इट डाउन, कमांडेड, he also commanded the revenue administration of the state. ठीक है, यानी कि इनको भी दीवानी डिपार्टमेंट मिल गया था. ठीक है, he was also handling the दीवानी, और जो फाइनेंस संभालता उस स्टेट का वो तो पावरफुल होगा ही. The person who is handling the finances of the state, he will be automatically powerful, yes or no? All the financial responsibilities, all the finances of the state, if it is in your hand, you will be powerful. जब पूरे स्टेट का फाइनेंस आपके हाथ में होगा तो आप पावरफुल हो गए. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया. सो बिकॉज ही वॉज हैंडलिंग द रेवेन्यू, हेयर ऑल्सो द मुगल इन्फ्लुएंस केम डाउन. यहां पर भी जो मुगल इन्फ्लुएंस है वो नीचे आने लगा, डिक्लाइन में जाने लगा. पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो हेयर ऑल्सो इन बंगाल पीपल वर under the command of Murshid Quli. Now zamindars in Bengal, they were not happy with Murshid Quli Khan. जो जमींदार थे ना बंगाल में, वो हैप्पी नहीं थे. They were very sad with Murshid Quli Khan. They were dissatisfied. Why? Because of the तकवी loans that I discussed previously. अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था? तकवी लोन्स के बारे में बताया था ना. I told you about the तकवी loans. What are these? The agricultural loans. ठीक है, which were directly given to the peasants. So nobody was coming to the जमींदार. अब बेचारे फार्मर्स को इजीली मुर्शीद कुली खान लोन दे रहा है कम रेट पर, लो इंटरेस्ट पे, तो जमींदार के पास कोई नहीं जा रहा था. जमींदार वर वेरी अनहैप्पी. दे सेड व्हाट इज दिस मुर्शीद कुली खान डूइंग? इट इज कटिंग ऑफ आवर रेवेन्यू. भाई हमारे पेट पे लात क्यों मार रहे हो? ठीक है, हमारा रेवेन्यू क्यों खत्म कर रहे हो? हमारे पास कोई नहीं आ रहा लोन लेने, हम किसको पागल बनाए? ठीक है, सो दैट इज व्हाई जमींदार्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मुर्शीद कुली खान. ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिच मर्चेंट्स, जमींदार्स, बिजनेस क्लास पीपल, दे वर नॉट हैप्पी विद मुर्शीद कुली खान बिकॉज ही यूज्ड टू हेल्प द पुअर एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज. क्योंकि ये पुअर कम्युनिटीज को, वल्नरेबल कम्युनिटीज को मदद किया करते थे. ही वॉज द सेवियर ऑफ दीज कम्युनिटीज. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट इज द वतन जागीर्स. अब आते हैं आपके नेक्स्ट, दैट इज the Watan Jagirs. Okay, this is the Watan Jagirs. पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पर सभी को? चलो, सो वतन जागीर्स की जब हम बात करते हैं, they are the Rajputs. ये हो गए आपके राजपूत्स. ठीक है, तो here we have the Rajput kings, particularly those kings who belong to आमेर, जो कि आमेर को बिलोंग करते हैं, एंड जो कि जोधपुर को बिलोंग करते हैं. The kings, Rajput kings belonging to Amer and Jodhpur, they were permitted, write it down, these flow charts are very important, इसको please draw कर लीजिएगा. ठीक है, they were permitted to enjoy considerable autonomy. Autonomy का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा comment section में? What do you mean by the term autonomy? सेल्फ रूल होता है ऑटोनॉमी. सेल्फ रूल नहीं बोलेंगे हम उसको, वी विल नॉट कॉल इट सेल्फ रूल. ऑटोनॉमी को हम सेल्फ रूल नहीं बोलेंगे. ऑटोनॉमी मीन्स व्हेन यू आर अंडर समबडी बट यू हैव द फ्रीडम टू मेक योर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के अंडर हो, किसी के अंडर काम कर रहे हो, बट कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा आपके काम में. Nobody is interfering. आपके पास इतनी पावर है कि आप खुद के रूल्स रेगुलेशन अपने दिमाग से बना सकते हो. जैसे कि जब आप बड़े हो जाते हो, आप पेरेंट्स के साथ तो रहते हो, ठीक है, पेरेंट्स के कमांड में हो, बट कम से कम आप इतना तो रूल बना ही सकते हो खुद के लिए कि आपको कब सोना है, कब उठना है, नहाना है या नहीं नहाना सर्दियों में. ठीक है, आप बड़े हो गए हो. बचपन में तो मार मार के निलाया जाता था कि भाई नहाओ, बट अब आप बड़े हो गए हो, पेरेंट्स के अंडर हो, बट आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको नहाना है या नहीं.
तो ये डेमोक्रेसी नहीं। ऑटोनॉमी मीन्स कि आप किसी के अंडर हो, किसी के दबाव में हो, बट अपने रूल्स बनाने के, डिसीजन लेने के जो आपके पावर है वो आपके पास है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस, सो दैट इज ऑटोनॉमी, उसका मतलब हो जाता है ऑटोनॉमी। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर। तो 18th सेंचुरी में राजपूत रूलर्स जो थे, दे हैड सफिशिएंट कंट्रोल ओवर देयर ओन वर्किंग, यस, लाइक प्रिंसली स्टेट्स। जैसे कि ब्रिटिशर्स के अंडर प्रिंसली स्टेट्स थे ना, थे तो ब्रिटिश इंडिया में, बट अपने रूल्स बना सकते थे। दे हैड द राइट टू चूज वेदर टू गो विद इंडिया और टू गो विद पाकिस्तान। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जोधपुर की, तो एक बहुत फेमस राजा थे, राजा अजीत सिंह। ही वॉज द मोस्ट फेमस किंग, राजा अजीत सिंह। ठीक है, ही हैड द गवर्नरशिप, राइट इट डाउन, ही हैड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात, गुजरात का गवर्नरशिप था उनके पास। एंड देन वी हैव स्वाई राजा जय सिंह, यहाँ पर जो थे वो हमारे पास थे राजा जय सिंह। जय सिंह जो थे, ही वॉज द गवर्नर ऑफ, ये किसके गवर्नर थे? गवर्नर ऑफ मालवा रीजन, सेंट्रल इंडिया जो है वहां पर मालवा रीजन के ये गवर्नर थे। सो दे ऑल्सो ट्राई टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज, ठीक है, बाय एस्टैब्लिशिंग देयर ओन इंडिपेंडेंट किंगडम्स। अपनी खुद की इंडिपेंडेंट किंगडम्स एस्टैब्लिश करते वक्त इनके पास भी इतनी पावर थी कि ये छोटे छोटे अपने वतन जागीर, इंडिपेंडेंट किंगडम्स, इंडिपेंडेंट टेरिटरीज ओन कर सकें। पॉइंट क्लियर? ये फ्लो चार्ट क्लियर हो गया तो फटाफट से बता दो। इफ दिस मच इज क्लियर प्लीज लेट मी नो सो दैट वी शुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैप ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी। यहाँ पर मैप दिख रहा है, यहाँ पर आप देखोगे ये राजपूत सो गए। ठीक है, हियर वी हैड द मराठा, नाउ दिस इज द मैप ऑफ मुगल एम्पायर ओनली, बट सी who are ruling, independent kingdoms are ruling। बंगाल में देखो, यहाँ पर बंगाल है, we have Bengal over here। ठीक है, ये मुगल पूरा एम्पायर है ग्रीन, यहाँ पर तो सिर्फ मुगल रूलर था, बट यहाँ पर निजाम आ गया। हैदराबाद, मैसूर देखो, कर्नाटक रीजन यू कैन सी, नॉर्दर्न सरकार रीजन। सो दीज वर द इंडिपेंडेंट किंगडम्स विच वर गेटिंग स्टैब्लिश्ड। बंगाल हमने पढ़ लिया, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बंगाल। ठीक है, देन वी हैव स्टडीड अवध ऑल्सो, वी हैव स्टडीड हैदराबाद ऑल्सो, हैदराबाद भी पढ़ लिया। अब सिख पर आते हैं, लेट्स मूव टू द सिख एम्पायर नाउ। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो जब हम सिख एम्पायर की बात करते हैं, एट दैट टाइम दी सिख रूलर्स ऑल्सो वर ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इन द एरिया ऑफ पंजाब। ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, पिंकिश, दिस पिंकिश एरिया दैट यू कैन सी ऑन द मैप, दिस वॉज द एरिया वेयर पंजाब वॉज गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये एरिया था जहाँ पंजाब ऑर्गेनाइज हो रहा था। So this Punjab, this Sikh community was organized in 15th century only। सिख कम्युनिटी की बात करेंगे, एरिया की नहीं। कम्युनिटी जो थी वो तो 15वीं शती में ही तैयार हो गई थी, 15th सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गई थी बाय गुरु नानक देव जी। द सिख रिलीजन वॉज स्प्रेडिंग, बट ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर नाउ दे वर combining themselves into soldiers, they were organizing themselves as soldiers। अब ये क्या कर रहे थे, खुद को सोल्जर्स के तौर पे ऑर्गेनाइज कर रहे थे। they were struggling with the मुगल आर्मी, मुगल आर्मी के साथ क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। and in this struggling what they were doing, they were establishing their own empire। ठीक है, बंदा बहादुर जी, yes, he was always fighting with औरंगजेब। औरंगजेब और बंदा बहादुर जी की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती थी। ठीक है, और again and again with the help of Marathas, बंदा बहादुर जी was also attacking on औरंगजेब and his empire। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पर सभी को? तो ये आपका हो जाता है सिख एम्पायर की बात। ठीक है, तो दिस वॉज टूडेज क्लास स्टेट ऑफ इंडिया इन 18th सेंचुरी। ये थी आज की क्लास स्टेट ऑफ इंडिया इन 18th सेंचुरी, और इसी के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वी हैव सॉल्व दीज क्वेश्चन। स्टेट द रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, clarify how mid 18th century India was beset with spectacle of fragmented polity। यानी कि आपको बताना है कौन कौन से इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गए थे। ठीक है, एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव स्टडीड। तो ये 3 क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने मेंस के प्रिपेयर किए हैं। आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास। द नेक्स्ट क्लास इज टुमारो। अब नेक्स्ट क्लास कब होगी, स्केड्यूल आई विल टेल यू, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, आई टेल यू द स्केड्यूल ऑल्सो। मैं आपको स्केड्यूल बताती हूँ। अब आपकी नेक्स्ट क्लास होनी है 23rd
दिसंबर को, ठीक है, इट विल बी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया एट 9 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। और ये पूरा स्केड्यूल, टोटल 12 क्लासेस आई विल टेक, 12 फ्री क्लासेस में लेने वाली हूँ, और आपको ये जो स्केड्यूल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यू विल गेट द स्केड्यूल ऑन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज। दिस इज द टेलीग्राम चैनल, लिंक में मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में। Simplifying UPSC with ease, this is the telegram channel, you can join it to join all these 12 classes which I am going to take from tomorrow। ये 12 क्लासेस में हम मेंस के लिए मॉडर्न हिस्ट्री को प्रिपेयर करेंगे। फॉर मेंस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर मॉडर्न हिस्ट्री इन दीज 12 क्लासेस, ओके। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो इन फ्री क्लासेस के माध्यम से हम आपके मेजर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कराएंगे, कंप्लीट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ओके। So on this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in this session. Yes. So thank you everyone. Bye bye.